So let us start the class. So we are recapping India again. India again is in prose section, essay section, and which is in your syllabus, written by Edward Morgan Foster. He talks about India. He talks about how he likes India, how he liked India, how he loved India, and he wanted to visit India. We will talk about why he came to India, and we will talk about what are the changes he saw. क्या क्या बदलाव उन्होंने देखा इंडिया में आने के बाद. जब फर्स्ट टाइम आए थे तो क्या देखा उन्होंने, जब सेकेंड टाइम आए थे तो क्या देखा उन्होंने, और फाइनली जब उन्होंने जब इंडिया आए तो फिर लास्ट टाइम उन्होंने क्या क्या चेंजेस देखा और क्या क्या उनको अच्छा लगा और क्या चीजें उनको उतनी अच्छी नहीं लगी यहाँ देखने के बाद. कुछ नॉइज आ रहा है, उसको अपने को म्यूट कर लीजिए आप लोग. एवरीबडी म्यूट. ओके, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू. Where is the file? So this is in the essay section, India Again by Edward Morgan Foster. Now we will talk about the author, about Edward Morgan Foster. Edward Morgan Foster was born on 1879 and died on 1970. And he was the only remaining child of an architect who died when the child was just 1 year old. It means that the writer's father, Edward Morgan's father, died when he was just 1 year old. His mother was from a middle class family. जब आप किसी राइटर के बारे में जानते हैं तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है. Like introducing the author is very important. Who wrote the essay, and introducing the author is one thing which you have to do when you are writing your exams. So one thing is important. The first thing is important is that when he was born, when he died, where he was born, and about his family members. His father died when he was just 1 year old, and his mother was from a middle class family. Father was from the upper middle class family, and his mother was from a middle class family. Morgan was the product of the English upper middle class. And he was educated at Tonbridge School in 1893 to 97 and at King's College, Cambridge. So about his education, educated at Tonbridge School in 1893 to 97 and at King's College, Cambridge. Foster wanted to know Indians and to explore their imaginative universe. Foster wanted to come to India, wanted to know Indians, and wanted to explore their universe. What kind of people are there? क्या सोचते हैं, कैसे लोग हैं,
उनकी दुनिया कैसी होती है, कैसी है. So he wanted to explore all these things. His first visit to India was mostly for pleasure and to visit his friend Masood. पहली बार जब वो आए तो किसी काम, कोई काम से नहीं आए थे, लेकिन वो इनवाइटेड थे. उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था मसूद, जिनसे वो मिले थे इन कैम्ब्रिज इन 1910 में. वो उनसे मुलाकात हुई थी और अच्छी दोस्ती हो गई थी दोनों में. और जब उन्होंने इनवाइट किया तो ही विजिटेड इंडिया इन 1912 to 13 and again in 1921 to 22. तो दो बार वो पहले भी आ चुके थे. और पहली बार क्यों आए थे? He came to visit his friend. वो अपने दोस्त से मिलने आए थे जिनका नाम था मसूद, एंड जिनसे वो 1910 में कैम्ब्रिज में मिले थे. So twice he came, 1912 to 1913 and again 1921 to 22. So these were the two times that he had already come. अब उन्होंने क्या क्या लिखा है? His literary works. When आप जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी ऑथर को तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं लेखक को कि उनका बर्थ प्लेस, उनका राइटिंग्स, उनका पेरेंट्स, उनकी फैमिली, और सबसे जरूरी है कि उन्होंने क्या क्या काम किया. लिटरेरी वर्क्स कौन, साहित्यिक, साहित्य में उनकी रुचि थी और क्या क्या उन्होंने काम किया. तो उन्होंने लिखा अ पैसेज टू इंडिया where angels fear to tread. एंजल्स आप जानते हैं, एंजल्स मतलब कि जहाँ फरिश्ते भी जाने से डरते हैं. एंजल्स फियर टू ट्रेड, ट्रेड मतलब होता है वॉक करना. तो जहाँ कोई एक प्रॉवर्ब है कि फूल्स रश, बेवकूफ वहां दौड़ जाते हैं जहाँ पर एंजल जाने से भी डरते हैं. फरिश्ते जाने से भी जहाँ कतराते हैं, डरते हैं, वहाँ बेवकूफ लोग दौड़ जाते हैं. तो ये उनका था लिटरेरी ऐसे, अ रूम विद अ व्यू, मतलब एक कमरा जिसका व्यू बहुत अच्छा है, जिसका सीन बहुत अच्छा है. और बहुत सारी उन्होंने कहानियां भी लिखी, स्टोरीज लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखे. जैसे द सेलेस्टियल ऑमनीबस, वो कलेक्शन है एक पेस्टोरियल एंड फैंसीफुल शॉर्ट स्टोरीज. मतलब कि बहुत इलस्ट्रेटेड, बहुत ही रंग बिरंगा जो की कहानियां हैं उसमें. फैंसीफुल मतलब कि आपको पढ़ के अच्छा लगेगा. और इसके अलावा ही पेंड 6 नॉवेल्स एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज ऑन हिज एक्सपीरियंसेस. और इसके अलावा उन्होंने 6 नॉवेल्स पे लिखे जिसमें उनके पूरे एक्सप्रेस किए हुए थे सारे व्यूज, जो कि उनके तजुर्बा, उनके एक्सपीरियंस पे आधारित जो हुआ करते थे, जो वाक्य, जो इंसिडेंट्स हुआ करते थे. द नॉवेल्स वाज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस. उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, उसी आधार पे उन्होंने कहानियां लिखी. अब आते हैं बात करने की इंडिया अगेन का, द ऐसे. तो ऐसे इंडिया अगेन is taken from one of his broadcasts given on BBC. वो एक ब्रॉडकास्ट दिए थे BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से ब्रॉडकास्ट वो दिए थे. कब दिए थे? जब वो इंडिया से वापस गए थे, ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1945. लास्ट टाइम जब वो इंडिया में आए और ये आखिरी विजिट था 1945, 1912, 1921 एंड द लास्ट विजिट वाज इन 1945. तो लास्ट विजिट में जब वो वापस गए थे तो उन्होंने लिखा, उन्होंने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से एक ब्रॉडकास्ट दिया था जिसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा था, ये इंडिया अगेन हैज बीन टेकन फ्रॉम दैट ब्रॉडकास्ट. Which was his last visit? He had come to attend the PEN conference at Jaipur. वो दो बार तो वो अपने फ्रेंड्स, सॉरी, एक फर्स्ट टाइम तो अपने दोस्त से मिलने आए थे और उसके बाद एक पेन कॉन्फ्रेंस हुआ करता था जयपुर में. और ये पेन क्या था? प्रोग्रेसिव इंग्लिश नेटवर्क, जहाँ पर राइटर्स वर्कशॉप हुआ करता था, जहाँ पर सभी इंटेलेक्चुअल जो मिलते थे और साहित्य के बारे में चर्चा हुआ करती थी. दे टॉक अबाउट
लिटरेचर, दे टू टॉक अबाउट स्टोरीज, पोइट्रीज। तो बहुत ही अच्छा लिटरेरी ग्रुप था, जो कि जयपुर में कॉन्फ्रेंस होता था, जिसमें एम फॉस्टर को बुलाया जाता था, ही वाज इनवाइटेड। तो वो लास्ट टाइम भी जब आए थे तो ही हैड कम टू अटेंड Excuse me, द ma'am. पेन कॉन्फ्रेंस एट जयपुर। यस, What is the full form of PEN, ma'am? Again, repeat it. प्रोग्रेसिव Yes, ma'am. प्रोग्रेसिव इंग्लिश नेटवर्क। Okay, ma'am. Thank you. तो ये क्लब हुआ करता था जहाँ पर साहित्यिक लोग, पीपल, इंटेलेक्चुअल्स वो मिलते थे और अपनी अपनी रचनाओं को सुनाते थे, और अपनी स्टोरीज, पोइट्रीज, चर्चा हुआ करती थी लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में। तो 1945 में वो आए थे। थर्ड टाइम व्हाई ही केम टू इंडिया? ही केम बिकॉज ही वाज इनवाइटेड बाय पेन कॉन्फ्रेंस एट जयपुर। And फॉस्टर लव्ड second time इंडिया। वो क्यों आए थे? क्या? Second time वो क्यों आए थे? वो फर्स्ट टाइम तो वो मिलने के लिए आए थे ना, अपने दोस्त से मिलने आए थे। और Yes, सेकंड ma'am. टाइम के Second बाद time? से वो, हाँ, वो मिलने मिलाने आए थे, इंडिया घूमने आए थे। और उस पर 1945 में वो, और इस दौरान वो पेन क्लब में इंट्रोड्यूस भी हुए थे। तो सेकंड टाइम थी वो पेन क्लब में आना शुरू कर दिए थे। और थर्ड टाइम जो पेन, जब कॉन्फ्रेंस में गए तो उन्होंने क्या क्या देखा, पूरा जो ऐसे आपका है इसी पर आधारित है कि पेन क्लब में पहले क्या होता था, क्या देखा उन्होंने, और इस लास्ट टाइम जब 1945 में, तो उन्होंने क्या देखा। तो बेसिकली फॉस्टर वाज कनेक्टेड टू पेन क्लब, और जिसके तहत वो एक बार दो बार पहले भी आ चुके थे। चलिए, तो फॉस्टर लव्ड इंडिया। अब इसका शीर्षक ही जो है इंडिया अगेन। इंडिया अगेन का मतलब ही होता है कि शीर्षक बता रहा है कि बार बार वो आना चाहते थे, विजिटिंग इंडिया अगेन। तो समथिंग विच यू वांट टू डू अगेन एंड अगेन, बार बार कुछ आप करना चाहेंगे, इसका मतलब है आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको वहाँ का खाना पसंद आ जाता है, तो वापस आप वहीं पे जाते हैं। कोई बात ऐसी जो आपको अच्छी लग गई, तो फिर यू कंटिन्यू टू गो टू दैट प्लेस। तो इंडिया अगेन, अब ऐसे पे आ जाते हैं हम। फॉस्टर लव्ड इंडिया। फॉस्टर को बहुत पसंद था इंडिया। वो आते थे और देखते थे और उनको अच्छा लगता था। ही वांटेड टू एक्सप्लोर, पहले भी ये बता चुके हैं। वो एक्सप्लोर करते थे, जानना चाहते थे कि इंडियंस कैसे होते हैं, उनको कैसे सोचते हैं, उनकी दुनिया कैसी होती है, और किस तरह से वो, इतना रिच कल्चर इन लोगों का है और इतना कलरफुल इंडिया है, वो सब देखना चाहते थे वो। तो ही had visited twice before, दो बार पहले वो आ चुके थे। In 1912 and 1921 at the Penn Club, he met Indian he met Indian intellectuals। तो जो पेन क्लब जो था, जो क्लब था ये, तो उसमें बहुत सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स थे, जो कि बात करते थे लिटरेचर के बारे में, जो बात करते थे साहित्य के बारे में। एंड वाज सरप्राइज्ड एट द इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। तो जब पहली बार जब वो आए थे, तो देखिए कि लोग वहां पर अपनी रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं और साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं। बट ये जब थर्ड टाइम जब ये जब आए, जब 1945 में व्हेन ही केम, उन्होंने देखा कि तो पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बात हो रही है और यहाँ एजेंडा पे कोई बात ही नहीं कर रहा। पहले लोग आर्टिस्टिक हुआ करते थे, कहानियां और पोइट्रीज और नॉवेल्स, ये सब बात होती थी। और he was surprised at the interest in politics more than the artistic, social or economic problems। तो पहले हर तरह की बात पे छोड़ करके लोग आर्टिस्टिक बात करते थे, साहित्यिक बात करते थे। और अब उन्होंने देखा कि 1945 में पीपल, जब ये लास्ट टाइम जब आए, तो वो थोड़ा सरप्राइज भी हुए कि लोग तो बिल्कुल एजेंडा पे बात ही नहीं कर रहे, और सारे के सारे लोग दे आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। ही फाउंड देम कीनली डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इश्यूज। और उन्होंने देखा कि बहुत ही वो इंटरेस्टेड हो करके पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे। एक्सक्यूज मी मैम, यस, किलनी डिस्कसिंग मतलब? कीनली मतलब, आर यू, इफ यू आर वेरी कीन, यू आर वेरी इंटरेस्टेड, मतलब पॉलिटिक्स उन लोग का एक हॉट इशू बन गया था। कीन, दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग पॉलिटिक्स। इट वाज नॉट सो अर्लियर, पहले ऐसा नहीं था।
तो ये पहला चेंज उन्होंने देखा। वो चेंज क्या था? People were not discussing literature, people were not discussing anything artistic, but people were discussing political issues. And जो कि पहले ऐसा नहीं था, it was not so earlier. When he tried to speak to the agenda, when he tried to speak on the agenda of the club, no one paid attention as politics was one of the utmost importance at that time. तो जब इन्होंने चाहा कि चलो एजेंडा पे बात करते हैं, कुछ साहित्य के बारे में बात करते हैं, कुछ लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, कुछ आर्टिस्टिक बात करते हैं, तो लोगों ने इनका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और इसलिए कि उस वक्त का बहुत ही एक अहम मुद्दा था पॉलिटिक्स। तो ये पहला चेंज था जो उन्होंने देखा। Foster noticed that तो फॉस्टर ये नोटिस किए that externally India was the same. बाहर से तो इंडिया वैसे ही है, वैसे ही गरीबी है, वैसे ही धूप है। जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, देखे ट्रेन में वैसे ही गंदगी है। जब खिड़की से बाहर देखा तो खिड़की पे बहुत गंदगी थी, गरीबी थी, भूखमरी थी, और बहुत ही डिस्टर्बिंग ये सब बात थी। वही घिसा पिटा, वही घिसी पिटी रूटीन, भी नहीं बदला था। और ये बहुत डिस्टर्बिंग बात भी थी। डिस्टर्बिंग बात ये थी कि बाहर से इंडिया बदला नहीं था, लेकिन लोगों की सोच बदल रही थी। और ये चीज जो बदल नहीं रहा है, जो बाहर से इंडिया बदल नहीं रहा है, यही रियल इंडिया है। जो लोगों की सोच बदल रही थी, ये न्यू इंडिया नहीं है, ये इंडिया नहीं है, लेकिन जो बदल नहीं रहा है वही इंडिया है। जैसे देखा, पॉवर्टी वॉज सीन एवरीवेयर, एवरीथिंग वॉज एक्सटर्नली, गर्मी उतनी ही थी। जब वो जयपुर में उनका जब प्लेन आया तो आधे घंटा शेड्यूल से पहले आ गया था प्लेन। तो वो देखे कि सब कुछ तो वैसे ही है, वैसे ही गर्मी, वही फील्ड, वही पॉवर्टी, वही गरीबी। तो उन्होंने कहा कि दिस इज द रियल इंडिया। तो टेक्निकली बता रहे हैं, फर्स्ट चेंज वाज दैट पीपल वर नॉट टॉकिंग अबाउट literature, people were not talking about anything artistic, people were talking about politics. और फिर उन्होंने देखा, externally India had not changed. Ma'am, your voice is not clear. Right Yes, now? ma'am. I think. Yes. Hello. Can you hear me? I think. Yes. Yeah. So externally India had not changed, but the people's thoughts were changing. Their thinking was changing. The second change which made him happy. The first change did not make him happy because he was upset. But the second change made him happy. And what was the second change? It was the lifting of the Parda system. It was a sign of freedom of women. Earlier, he had noticed that women were hardly ever seen. अब उस वक्त तो और भी औरतें बाहर नहीं निकलती थी, पर्दे में रहती थी। और जब भी एम फॉस्टर को बुलाया जाता था कहीं लंच के लिए, कहीं डिनर के लिए, तो औरतें बाहर नहीं आती थी, पर्दे में रहती थी। और इस बार उन्होंने देखा कि द वुमेन वर, ये पर्दा सिस्टम खत्म हो रहा है और औरतें अब आने जा रही, बाहर भी आ रही हैं।
Hello. Your voice is not clear. Hello. Can you hear me? I think system is facing network. Hello. Hello. Can you hear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So what was the second change? The Parda system. And it was a sign of freedom of women. Earlier he had noticed that women were hardly ever seen. शायद ही कभी नजर आते थे ये लोग. Even in the second visit, he only saw some who were educated. और जब वो दूसरी बार जब आए तो only some women were seen who were educated. But he was very pleasantly surprised to see them outnumbered on the streets openly. To see them out on the street. और वो बहुत खुश हो गए कि वो लोग अब सड़कों पर भी नजर आ रही हैं और पर्दे में नहीं रहती हैं. और किसी किसी क्लब में तो वो लोग मर्दों से ज्यादा भी more than the men. At some conferences they outnumbered the men. It means men से ज्यादा women नजर आती थी. And they were taking active part in discussion. लगता होस्ट ये मुड़ रहा है. रोहित वीडियो मैम आपका आवाज नहीं आया है. आप Some problem with the neck connectivity today. ऐसा कभी होता नहीं है, but somehow. चलिए. Hello. Yes, ma'am. Connectivity is the Yes, ma'am. major problem. All right, चलिए. And please take attendance. Then Yeah. teachers. All right. Now the third change. दो change समझ गए आप लोग ना? Now the third change. The third change was that he saw was the buffet system. अब आप सब जानते हैं buffet system क्या होता है? Yes. हाँ. Yes, ma'am. तो पहले क्या होता था? सर्व जो भी करना. हाँ वो लोग जो भी बनता था वो सर्व करते थे लोग और सबको खाना पड़ जाता था जो कि उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी इसलिए कि छोड़ना तो बैड मैनर्स होता था तो जो भी सामने आया उसको खाना पड़ता था और उनको प्रॉब्लम बाद में हो जाता था. So the third change which he saw was the buffet system. In his previous visit, he had painful experience. Whenever he was invited for dinners, but the buffet system was the relief. But he was very happy कि चलो buffet system शुरू हो गया इंडिया में भी. अब हम लोग को सब कुछ खाना नहीं पड़ेगा और जो मन चाहता है वही खा सकते हैं. At the pen club, on the question of one of the question was discussed was, let me correct. One of the questions
hotly discussed was the use of English in India. तो लोग डिस्कस करते थे इंडिया में इंग्लिश क्यों बोली जाए और इंग्लिश को प्रेफरेंस क्यों दिया जाए. और दोस्त फ्रॉम द नॉर्थ, जो नॉर्थ साइड के थे, प्रेफर बोलते थे कि नहीं हिंदी में बात करेंगे या उर्दू में बात करेंगे. फ्रॉम बंगाल पीपल प्रेफर्ड बंगाली, बट राइटर्स फ्रॉम साउथ प्रेफर्ड इंग्लिश. राइटर्स साउथ के थे वो प्रेफर करते थे इंग्लिश. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉस्टर मेट स्पोक इंग्लिश. लेकिन अधिकतर लोग जो इंग्लिश जो जिनसे फॉस्टर मिलते थे, दे ऑल स्पोक इंग्लिश. Foster's last visit to India came to a sudden end. फॉरेस्ट कहाँ है? हेलो, क्या फॉरेस्ट क्या? फॉरेस्टर मीट स्पोकन इंग्लिश. फॉरेस्टर मीट क्या होता है? ये लेखक का नाम है भैया, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर. आखिरी बार जब इंडिया आए थे, सडनली वो स्टॉप हो गया था उनका. जाने के बाद उनकी तुरंत उनकी डेथ हो गई थी. वो यहाँ से गए और उसके बाद फिर वापस 1945 के बाद वापस वो इंडिया नहीं आए. He was back in London in December midnight. To Foster, it was not like his arrival in Delhi. और इसी के बाद वो वापस चले गए और फिर इंडिया वापस नहीं आए. Hence, the author has attempted to elaborate the Indian life in its various true colors. और इस तरह से उन्होंने इंडियन लाइफ कैसा होता है. हेलो, आवाज तो नहीं आ रहा. आप लोग प्लीज स्विच ऑन टू. लास्ट सही. लास्ट क्लास में पहली बात तो आपको बता दें, आप लोग कैमरा स्विच ऑन रखना चाहिए. सारे के सारे के वो कैमरा तो ऑफ अटेंड रखेंगे.